اوکے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پر بات کرنے کے لیے نہ صرف پولیٹیکل فورسز کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے پوچھتے ہیں کیسے ملک کو مضبوط مستحکم بنانا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال ایک طرف تو دوسری طرف آئینی ترامیم کی جب بات آتی ہے تو آرڈیننس بھی لائے جاتے ہیں. اور اس وقت جو ایک زیر بحث موضوع ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سیزن 2 بھی اسٹارٹ ہے اور کووڈ کی 4th ویو بھی سر اٹھا رہی ہے. جلسے جلوس کی سیاست پی ڈی ایم تک ہی نہیں رکتی اور اس کے برعکس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بھی مختلف اضلاع میں جاتے ہیں اور وہاں جلسے کرتے ہیں. عوامی اجتماع سے آج بھی وہ گھوٹکی میں ایک بہت بڑے جلسے سے آج وہ خطاب کر رہے تھے تو ایس او پیز تو وہاں پر بھی کوئی دکھائی نہیں دی. اور میڈیا اتھارٹی بل وفاق لایا ہے اور اس میں کیا پیچیدگیاں ہے ابھی تک اس کو اپوزیشن اور صحافتی حلقوں میں ایک مایوسی اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وفاقی حکومت آزادی صحافت اور جہاں پر ان پہ تنقید کی جاتی تھی یا جملے کسے جاتے تھے اب وہ نہیں ہوگا, میڈیا ٹوٹل کنٹرول ہوگا. اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ یا ایک ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے پورے پاکستان کی میڈیا کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ واٹر کرائسس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمیوں کا سیزن اینڈ تک آ کے پہنچا لیکن ابھی بھی نہ صرف سندھ کے دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ کراچی کی مضافاتی کالونی میں 3 دن 8 دن پینے کا پانی میسر نہیں ہے اور بہت ساری جگہوں پہ انڈسٹریلسٹ کو پانی فراہم کیا جاتا ہے تو روٹی کپڑا اور مکان جو غریب کی بات کی جاتی تھی, متوسط طبقے کی بات کی جاتی تھی, ان کو پانی فراہم کرنا بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممبر سندھ کونسل جناب منیر خٹک صاحب. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, بہت شکریہ. منیر خٹک صاحب سابق ممبر سندھ کونسل ہیں آپ. ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان لیڈر موجود ہیں پاندی خان بگٹی صاحب. بگٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ. منیر صاحب اسٹارٹ کروں گا میں آپ سے. میڈیا اتھارٹی بل وفاق لایا ہے, ٹھیک ہے, میڈیا کو کنٹرول کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن اس کو ڈیٹیلڈ ابھی حکومت نے شیئر نہیں کی, وفاقی حکومت نے, کہ کن کن چیزوں پہ حکومت کی نظر ہوگی. لیکن ایک اگر کہانی کا دوسرا ہم رخ دیکھیں تو آپ نے ہمارے پڑوسی ملک کی میڈیا دیکھی ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رویہ ٹھیک ہے یا ہمارا میڈیا سب صحیح کر رہا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اچھا, اس سلسلے میں یہ ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ آج 1 سپٹمبر ہے. 31 سپٹمبر کو 2018 کو جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے وزیر اعظم بن کے تو ان کا ایک بیان تھا, اخبارات کا زینت بنا تھا 1 سپٹمبر کو کہ میڈیا مجھے صرف 3 مہینے دے, اس کے بعد بھلے وہ جتنا چاہے تنقید کریں. انہوں نے حسب معمول وہی کام کیا جو یہ کرتے ہیں کہ یوٹرن لیا 3 مہینے کی جگہ, بجائے اس کے کہ وہ تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے, کچھ اچھی چیزیں عوام کے سامنے لے کے آتے, اپنے منشور کو لے کے آگے چلتے. انہوں نے آج اتفاق سے وہی کہہ رہا ہوں, وہی 1 سپٹمبر ہے, 3 سال بعد انہوں نے پابندیوں کی ابتدا کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی تو بہرحال اس کو میڈیا کے اوپر ایک مارشل آرٹ سمجھتی ہے. میڈیا کے ساتھ ہم لوگ بھرپور طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی بھی ہے, لیکن اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ قصور تھوڑا بہت برا نہ مانے, میڈیا کا جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں یا جو مختلف چینلز ہیں جس طریقے سے اس کو پروموٹ کیا گیا قصور ان کا بھی ہے. کس طرح سر بتائیں نا, کس طرح اب میڈیا کا کام ہے جو دکھے گا ہم وہ دکھائیں گے, جو گراؤنڈ پر ہوگا ہم عوام کو بتائیں گے, کس طرح جس طریقے سے اس کو ایک ایسی چیز کو جس کو ٹافی سمجھ لیں, ایک ایسی بذائقہ ٹافی کو اس طرح خوبصورت انداز سے پیکنگ کر کے اشتہارات کے طور پر میڈیا نے پروموٹ کیا تھا. اگر آپ یہ بات کر رہے تو کیا جب خان صاحب کیمپین چلا رہے تھے 2018 سے پہلے تو کیا عوام ان جلسوں میں نہیں تھی؟ میڈیا بھی وہی دکھا رہا تھا. اگر 1000 تھی تو اس کو لاکھ میں دکھایا گیا, اتنا فرق آیا ہے. میڈیا نے یہ اتنی بھی سپورٹ کی تھی ان کے وہاں پہ باضابطہ طریقے سے ہمارے ووٹ بینک پہ میڈیا نے ڈاکہ نہیں ڈالا, میڈیا نے نہیں ڈالا, ڈاکہ تو کسی اور نے ڈالا. لیکن بہرحال جو تھوڑا بہت ووٹ ان کو پڑا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام بہت کم ایسے چینل تھے جو نیوٹرل پہ جا رہے تھے, تمام کے تمام بالکل ون سائیڈڈ تھے. اگر 2018 کا ہم الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں اس وقت وہ تھا. بہرحال میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اس ماشاءاللہ کو جو میڈیا کے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے. پہلے بھی ہم نے مخالفت کی ہے, آج بھی ہم کریں گے. ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو صاحب نے واضح طور پر موقع ہے ان کا. ٹھیک ہے, حسنان مرزا صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی
हसनैन साहब आपका ऑडियो बहुत कम है, काइंडली ऑडियो बढ़ाइएगा। टेक्निकल टीम, हसनैन मिर्जा साहब, क्या अब आपको मेरा वॉइस आ रहा है, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बेहतर है सर। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीडिया अथॉरिटी बिल वफाक लाया है, तो आप तो वफाक के पार्टनर हैं, तो इसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और सहाफ़ती बरादरी में गम गुस्सा है कि आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ बताएंगे डिटेल में कि ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये कई दिनों से डिबेट काफी तफसीली तौर पे मीडिया चैनल्स और उस पर ये चल रहा है और देखने का मौका भी मिला है। देखिए, इसमें अव्वल जो बात जो नजर आती है उसमें तो जो इनफरादी हकूक हैं लोगों के, वो प्रोटेक्ट करने का एक कानून साजी करने की कोशिश की है हुकूमत ने। और आप ये देख लें कि दुनिया के किसी भी ममालिक में लाइबल हो या स्लैंडर हो, उस हवाले से तो प्रोटेक्शन मौजूद होती है। मैं आपको एक मौका वो बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंतहाई अफसोसनाक और तौहीन अंगेज जो कार्टून शाया हुए थे डेनमार्क में, ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, एक तरफ वो भी बोलते रहे कि ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ उसका राइट है, बट क्या एक इदारे का या सहाफी का या पब्लिकेशन का इस हद तक इज़हारे राय की आज़ादी होनी चाहिए कि दुनिया के दूसरे बड़े मजहब के इतनी बड़ी तौहीन कर दें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाए? देखें, वो बहैसियत मुसलमान ना आपको ना मुझे किसी को भी वो काबिल बर्दाश्त अमल नहीं था। तो लिहाजा खुदा न खास इधर हमारे पास पाकिस्तान में भी होता है ना। अच्छा, क्या ही अच्छा होता मिर्जा साहब, क्या ही अच्छा होता कि लास्ट 2 से 3 सालों में बहुत सारे मुलाजमीन मीडिया हाउसेस से निकाले गए, उनकी सैलरीज अभी तक पेंडिंग में है। वफाकी हुकूमत ये कदम उठा लेती कि वो जो ड्यूज थे या उन मामलात में अपना रोल अदा करती, बल्कि उल्टा ये कि और मीडिया पे मतलब इस तरह की कदगन लगाई जा रही है। देखिए, मेरे ख्याल से मीडिया जो है वो रियासत का चौथा सतून होता है, और जितना ताकतवर मीडिया होगा उतना ही ताकतवर आपकी जमहूरियत का सारा निजामी ढांचा होगा। तो मीडिया को जरूर ताकतवर होना चाहिए, बट आपको एतमाद में लिया गया है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को एतमाद में लिया गया है? किस ये 2-3 बातें हो गई हैं, तो आप ये अथॉरिटी, ये जो मीडिया अथॉरिटी बिल लाया जा रहा है, ये तमाम चीजें आपके इल्म में हैं, आपको एतमाद में लिया गया है? देखें, ऐसे तो मैं अपनी बात करूं तो मैं मेंबर सूबाई असेंबली हूं, या नेशनल असेंबली में लाया जा रहा है, और वहां बिल्कुल पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स और वही लर्ज कर रहे हैं, क्योंकि विफाक में भी आपके लोग बैठे हैं, फहमीदा मिर्जा और बहुत सारे लोग आपके विफाक में, उनको एतमाद में लिया गया है, और भी एमएनएज हैं, और उनको डिस्कस किया गया है, सबने अपनी अपनी राय भी दी है जरूर। और इसमें एक देखें, जो मीडिया कंट्रोल की जो बात आ रही है, पेमरा एक इदारा, आईनी कानूनी इदारा आज का नहीं, 20-22 साल हो गए उसको, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो वैसी मौजूद है। आज जो कानून जो लाया जा रहा है उसमें बेसिक चीज तो जो की जा रही है वो एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया जा रहा है जुडिशियल अथॉरिटी के साथ, जो खुदा न खास्ता अगर मेरे मुतालिक कोई गलत अगर कोई बात मीडिया पे आ जाती है तो मेरा हक होना चाहिए ना कहीं रुजू करने का, जुडिशियल। वो आपको एक और बदकिस्मत फैक्ट ये जरूर पता होगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां आज तक एक सक्सेसफुल अवार्ड कोर्टों के थ्रू नहीं हुआ है फॉर लाइबल और स्लैंडर। आज मैं बैठकर मीडिया पे मैं आपके नाम मैं कुछ भी बोल दूं, उसके लिए मेरे से कोई नहीं पूछेगा, ये मेरे ख्याल से मुनासिब वैसी अच्छा, नहीं है। कानून में ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट लीडर हैं सिंध असेंबली में हसनैन मिर्जा साहब, पानी का एक इशू हम देखते आ रहे हैं, जहां तक मुझे याद है, जब से मेरी आंख खुली है, सिंध तासवादे के बाद भी अक्सर सिंध पानी के लिए महरूम रहता है। दरियाओं पर दिए भी हम जलाते हैं, फिर जब हम शहरी सिंध की बात करते हैं तो यहाँ पे भी पानी पीने के लिए नहीं है, जमींदार को जमीन के लिए पानी नहीं है, तो ये पानी जाता कहाँ है? और अक्सर हम ब्लेम पंजाब पर लगाते हैं, तो आप एक्चुअल स्क्रीन पिक्चर बताएं ना, एक्चुअल मसला कहाँ है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने ये अहम बर्निंग इशू अभी रेज किया है। देखें, दुनिया का आईनी का जो इंटरनेशनल लीगल रिजीम है उसमें हमेशा लोएस्ट राइपेरियन जो होता है वही उसको पहला हक होता है पानी के जखीरों पे, वसाइल पे। यही केस पाकिस्तान लड़ रहा है इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किशन गंगा डैम के खिलाफ। ठीक है, पानी वहां से आता है, फिर पाकिस्तान में आता है, तो लिहाजा पाकिस्तान का पहला हक है। ठीक है। अब ये सारा सिस्टम जो है उसमें आखिरी बैराज पूरे पाकिस्तान में वो है कोटड़ी बैराज। ठीक है।
ہمیشہ یہ کیوں دیکھا جاتا ہے کہ کوٹڑی بیراج پہ ہی جو پورے پاکستان کی کمی ہے یا پورے سندھ میں اگر پانی کی کمی آ رہی ہے وہ ساری کمی جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے کوٹڑی بیراج سے, جو انٹرنیشنل لا کے تحت سب سے پہلا حق ہی کوٹڑی بیراج کا ہے. کوٹڑی بیراج وہ لوکیشن ہے جہاں سے کراچی کو پانی آتا ہے, جہاں سے میرے ضلع بدین کو پانی آتا ہے. ساری ساحلی پٹی کو سی انٹروژن کے مقابلے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کوٹڑی بیراج پہ پانی درکار ہوتا ہے. ابھی جب یہ شارٹیج تو ابھی آئے, آج سے اگر آپ 2 ہفتے سے چلے جائیں, عجیب بات ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. وفاق نہیں پانی دے رہا, ارسا پانی نہیں دے رہا, بدین کے لیے اور کراچی کے لیے پانی نہیں دے رہا تھا, بٹ 2 ہفتے پہلے 73,000 کیوسیکس کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم سندھ گورنمنٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ریلیز کر رہی تھی سمندر میں پانی. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پانی پہ لیبل لگا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پانی ہم سمندر کے لیے دے رہے ہیں, بدین کے لیے نہیں دے رہے. یہ سندھ گورنمنٹ کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے, کرپشن ہے, بدنیتی ہے. میرے خیال سے یہی اگر آپ سیاسی نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو کوٹڑی بیراج کا کمانڈ ایریا ہی ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کو شکست نصیب ہوتی ہے. سکھر اینڈ گڈو بیراجز ایریاز وہ ہیں جہاں ان کے اپنے اکابرین کے حلقے ہیں, جہاں ان کا سپورٹ بینک ہے, جہاں ان کی شوگر ملیں ہیں, جہاں ان کی زمینیں ہیں, ان کے اسٹیٹس ہیں. جہاں تک میں سمجھاؤں حسنین مرزا صاحب, آپ کا کہنا ہے کہ پانی ڈیوائیڈ اکارڈنگلی ہو رہا ہے, برابری کی سطح پر وفاق پانی دے رہا ہے. سندھ کے اندرونی معاملات اور سندھ حکومت جہاں جہاں پہ ان کے اپنے ووٹ بینک ہے, اپنے اکابرین ہیں, ان کو پانی دے رہی ہے اور آگے نہیں دے رہی. مزید لفظوں میں اگر بہتری کرنے کی اجازت ہو جی, دیکھیں, جو سندھ بحیثیت صوبہ جو کیس لڑتا ہے وفاق سے یا ارسا سے, ادھر دیکھیں سندھ کی نمائندگی بھی ہے, وہ کیس لڑتا بھی ہے, ہم ان کے ساتھ بھی ہیں اس ایشو پہ. بٹ آپ کا خود جو آپ بیان کر رہے ہو وہ عمل بھی آپ خود کرو گے تو یقیناً پھر آپ کی آواز میں طاقت بڑھے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں سوائے کوٹڑی بیراج کے اور پانی کی قلت کدھر ہے؟ ایسا کیوں ہے جو آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا, سندھ گورنمنٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, مور دین 100% ایلوکیشن سکھر بیراج اٹھا رہا ہوتا ہے. بھائی یہ پانی جا رہا کدھر ہے؟ آپ 12,000 کیوسیک یہ بتاتے ہیں کہ لائن آف غائب ہو جاتا ہے بٹوین سکھر بیراج اینڈ کوٹڑی بیراج. اب یہ دریا سندھ جو ہے یہ تو ہزاروں سالوں سے, لاکھوں سالوں سے بہ رہا ہے. یہ بیراجز وہ 100 سال سے اوپر ہو گئے, کبھی بھی 4-5 ہزار کیوسک سے اوپر لائن لاسز نہیں ہوئے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آ کے 12,000 کیوسک کیسے غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں؟ دیکھیں بڑے سوالیہ نشان ہے, اتنا سمپل وہ میٹر نہیں ہے. پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا, پہلے ہمیں اپنے اعمال سیدھے کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنے گھر میں انصاف کرنا پڑے گا, پھر ہم دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بالکل. ٹھیک ہے, لاسٹ میں حسین مرزا صاحب آپ نے تمام چیزیں آویزہ کر دی, بتا دی عوام کو کہ ایشو کہاں پر ہے, تو ان ایریاز کی وفاق وہاں جا کر نشاندہی کرے اور بتائے فیکٹس اینڈ فگر, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اصل پرابلم یہاں پر ہے وفاق اور سندھ, اور اس طرح کی یہ جو بلیم پولیٹکس کی جاتی ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ کارڈ یوز کیے جاتے ہیں, کوئی سندھ کی سمپیتھی گین کرتا ہے تو کوئی پنجاب کی, تو کوئی اردو بولنے والوں کی. اس سیاست سے دور ہو کر پرفارمنس کی بات کی جائے. بالکل, آپ ایبسولوٹلی بات صحیح کر رہے ہیں, اور اس میں اگین میرے خیال سے میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے جو ہماری آوازوں کو یہ پلیٹ فارم دیتا ہے, جو یہ پہنچ سکتے ہیں, ان چیزوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. اب یہ جو بات ہے, اب اریگیشن کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے, آپ کی تھوڑی سی میں یادداشت دوہرا دوں. سندھ گورنمنٹ نے اپنے انجینئرز بھیجے تھے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, جنہوں نے پنجنت بیراج پہ اچانک جا کے انہوں نے چھاپا لگایا تھا. ٹھیک ہے, وہ کیا, انہوں نے ڈیٹا چیک کیا, میجرمنٹ چیک کی, پانی کی موجودگی, پانی کے اندراج اور اخراجات جو ہو رہے ہیں سارا وہ چیک کیا اور ویریفائی کیا. رائٹنگ میں وہ موجود ہے. سندھ گورنمنٹ نے تسلیم کیا کہ جو پنجاب گورنمنٹ جو ڈیٹا دے رہی ہے وہ درست ہے. اس کے تقریباً ہفتے کے بعد جب پنجاب گورنمنٹ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز گڈو بیراج پہ پہنچے, ٹھیک ہے, تو ان کو سیدھا جواب دے دیا گیا, وی ول ناٹ لیٹ یو آبزرو دا فگرز, ہم آپ کو گیجز چیک نہیں کرنے دیں گے, ہم آپ کو ریکارڈز چیک نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کال کریں. ٹھیک ہے مرزا حسنین, دامن صاف ہے. حسنین مرزا صاحب کال کریں.
हसनैन साहब कॉल पर हैं, मैं ये जवाब खटक साहब से लेता हूँ। खटक साहब, आप तो इरसा के नुमाइंदों को आप चेक भी नहीं करने देते, मतलब ऐसा तो ना करें ना आप। अवाम वो अगर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अवाम को फैक्ट्स एंड फिगर की किल्लत कहाँ है, पानी वहां से पूरा आ रहा है और बहुत सारे लोगों की जमीन बंजर हो रही है, तो ऐसा तो जुल्म ना करें। देखिए अरसा जहाँ तक है, अरसा का मामला है वो ये है कि वफाकी हुकूमत के बी टीम का किरदार अदा कर रहा है इस वक्त प्रैक्टिकली। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं बी टीम का? आप जरा सुन लीजिएगा, इस वक्त हमारे मिर्जा साहब जैसे कह रहे हैं, मिर्जा साहब ये है कि बस इल्जाम बराए इल्जाम के तहत बात कर रहे हैं, हालांकि इस पूरे सिंध की बात हो रही है, यहाँ पर सिंध के मफाद की बात हो रही है। हमारे सीएम साहब ने भी अभी भी इनको दावत दी है कि तमाम जो एमपीएज हैं हमारे साथ वो विजिट पे जाए, वो खुद देख ले सूरत हाल, पंजाब का विजिट करना है या जहां का भी वो करना है, पूरा विजिट की दावत दी है इनको। नहीं सर, हलीम साहब भी विजिट पे जाते हैं, हमारे सुनिएगा, मिर्जा साहब जो बात कर रहे हैं 40% पानी इस वक्त सिंध को कम दिया जा रहा है। 40%। कौन कम दे रहा है पानी? उन्होंने कहा पानी पूरा आ रहा है। वफाक की बात नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वफाक जो है वो 40% पानी हमारे को कम दे रहा है। इसका जवाब मिर्जा साहब ये भी नहीं देना चाह, मिर्जा साहब जवाब दे दें कि जो चश्मा झेलम लिंक केनाल है और टीपी लिंक है, इसमें जो पानी छोड़ा गया है या वो है, इसके बारे में क्या कहते हैं जो छोड़ा गया है। इसके अलावा मुस्तकिल तौर पे सिंध का पानी जो चोरी किया जा रहा है, मुस्तकिल तौर पे तोसा गुड्डू बिराज से जो पाइपलाइनें लगा के, क्या ये इनके इल्म में नहीं है या इनके ऊपर पर्दापोशी कर रहे हैं चूंकि ये इनके इत्तेहादी है, या फिर ये कि जो सीएम साहब ने इनको दावत दी है वो बिल्कुल उनके साथ विजिट करे। मैं तो ये समझ रहा था कि जीटीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस मसले पे तो कम से कम खड़ी होगी, ताकि हमारी जो जमीनें बंजर हो रही है, हमारी को पानी की शॉर्टेज पड़ रही है, वफाक ज्यादती कर रहे हैं, बेशक इत्तेहादी रहे, लेकिन उसूल पे सिंध के मफाद में इनको चाहिए, जीटीए को चाहिए कि हमारे पास पानी के मसले पे पॉलिटिक्स ना करें, हमारा साथ। लास्ट एक लेता हूं, हसन मिर्जा साहब जी, आप सुन रहे होंगे मुनीर खटक साहब की बात। जी जी जी, आप लास्ट में चाहूंगा इस पे आप क्या इनको तसल्ली देना चाहेंगे? आप सिंध के मामले में भी विफाक का साथ दे रहे हैं। ये खटक साहब हमारे मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं और थोड़े नादान भी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वो आए बस फिल्म का जरा दौरा करें, सरजमीन की सूरत हाल देखें और वो बेहतर। अब देखें, ये खुद उन्होंने जो पिक्चर पेंट की है, जो बात मैंने की है, वो तो सिंध की गवर्नमेंट की इरिगेशन डिपार्टमेंट की राइटिंग में नोटिफिकेशन मौजूद है। वो अगर नोटिफिकेशन मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ या आपके पास मौजूद होगा, आप देख लें। वो उसमें अगर सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि हमें हिस्सा पूरा द गेजेस आर करेक्ट एट पंजनत, तो फिर मैं झूठा हूँ। अगर सिंध गवर्नमेंट ने खुद ने बोला है, तो मैं खटक साहब से गुजारिश करता हूँ कि लिहाजा अपनी गवर्नमेंट से, वो पार्टी से तो है मुंसलिक, तो वो अपनी गवर्नमेंट से डेटा तो पहले ले सारा, चले बहुत शुक्रिया के लिए खड़े हैं। देखिए इस वक्त इंशाल्लाह हमेशा खड़े होंगे। इस वक्त हमारी हक है, वो तो बरहक है। और जो इनकी, मैं तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट से इस मौक़िफ़ पे इत्तेफाक कर रहा हूँ। खटक साहब खुद अपनी गवर्नमेंट से इख्तिलाफ कर रही है। मिर्जा साहब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सिंध की पानी के लिए? ठीक है चले, तो मैं आऊंगा तामिकन आपके पास। विफाकी हुकूमत मीडिया पर पाबंदियां और ये जो मीडिया अथॉरिटी बिल आप ला रहे हैं, कुछ खदोखाल बताएं ना, किन किन चीजों को कंट्रोल की जा रही है? जैसे हसन मिर्जा ने कहा कि कुछ ऐसे तौहीन आमेज चीजें भी या कैरेक्टर असोसिएशन की झूठी खबर चल गई और वो प्रूफ भी नहीं हुई। किन किन चीजों पे ये मुहित है, या सिर्फ ये कि अच्छे ख्वाब दिखाते रहे, इस तरह का मीडिया हो? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साजिद भाई आपका और वी न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया। देखें, असल इशू ये, जिस तरह मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई मिर्ज़ा साहब बता के गए कि जिस तरह के कार्टून नुमा इसमें इशू शाया हुए थे, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ जो लोग हैं जिनका आप बखूबी उनको जानते भी होंगे, कुछ जो हैं जो उनको मीडिया को गलत ट्रैक की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत जब एक बिल पास करनी जा रही है तो ज़ाहिर सी बात है बाकी अपोजिशन वाले होंगे तो उनसे भी उनकी राय ली जाएगी। ऐवान में बुला के, इजलास बुला के आप एतमाद में क्यों नहीं लेते तमाम लोगों को? ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों होती है? देखें, जब भी एतमाद में लेने की कोशिश की जाती है, जिस तरह ऐवान का आपने हाल देखा, वहाँ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कादर पटेल जैसे साहब जैसे लोग शोर शराबा शुरू करते हैं, पूरा ऐवान का माहौल ही बिगाड़ देते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई आए टेबल टॉक में बैठ के, हम कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी मामला है, आप बैठ के बात करें।
जब भी ऐवान की आपने मीडिया खुद इन चीज़ों को दिखाती है, जब भी ऐवान की कोई इजलास आता है तो ये सबसे पहले बाइकाट करके बैठ जाते हैं इन चीज़ों से। ये कादिर पटेल साहब की बातें कर रहे हैं कि आपके पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हो गए, मीडिया के पास दिखाए जाए, वो बिल्कुल किस तरह मुराद सईद टेबलों पे चढ़े हुए हैं, ये दूसरों को वो लोग मारे जा रहे हैं। क्या ये क्लिप नहीं थे? शुरुआत कहाँ से हुई ना, शुरुआत भी आपकी तरफ से होती है ना। बुक्स मारे गए बाज़ाब्ता तरीके से, टेबलों पे तो आप लोगों के लोग चढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा, आज भी क्लिप्स मौजूद होंगे। जहां तक मीडिया के ऊपर है कि जो तौहीन मजहब हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके ऊपर तो दो राय हो ही नहीं सकती। उसमें तो हर किस्म के मजहब की, अगर किसी भी मजहब की, इस्लाम तो इस्लाम, किसी भी मजहब की तौहीन का वो होता है, उसमें तो बिल्कुल मीडिया वैसे खुद भी ख्याल रखता है और पाकिस्तानी मीडिया जिम्मेदार मीडिया है। ठीक है, मेरा मैं इनसे पूछूंगा बुकी साहब, मीडिया का चलो ठीक है, आपने बता दिया कि कुछ मामलात ऐसे थे कि अब हम उन पे काम कर रहे हैं। पानी का एक बहुत बड़ा इशू है, आपने सिंध और बिल्कुल बलूचिस्तान को एतमाद में नहीं लिया, फिर पानी के मामला चले, सिंध ने वही विफाक पर इल्ज़ाम लगाया कि पानी हमें कम मिल रहा है। अभी बैठे हुए नुमाइंदगी कर रहे हैं आप पीपल्स पार्टी की, खटक साहब, वो भी कह रहे हैं कि 40% पानी आपने कम दिया। बताएंगे क्यों कम दे रहे हैं आप सिंध को पानी? देखिए, पहली बात पानी आप क्या चुरा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि सिंध को जो पानी का कोटा है वो बराबर मिली जा रहा है। और दूसरी बात है, जिस तरह आपने देखा होगा पिछले दिनों भी हमारे अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब इन्हें बेनकाब करने की कोशिश करने जाते हैं किसी भी बैराज में। पिछली दफा रेस किनाल लाड़काना में चले गए तो उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हीं के लोग, अनवर सियाल के लोग थे, उन्होंने हमला कराया। वो एक चीज को बेनकाब कर रहा है कि पानी मौजूद है, पानी चोरी कर कौन रहा है? आपके जो वहाँ वडेरे हैं, आपके जो बदमाश हैं, वो पानी अपने फार्मों पे लेके जा रहे हैं और खेतों में पानी जा ही नहीं रही है। जब उस चीज को हम बेनकाब करने के लिए जाते हैं, अभी खटक साहब ने कहा कि मुराद अली शाह साहब ने कहा कि एमपीए साहब को दावत दी है। अरे एमपीए साहब तो खुद वहां जाते हैं आपको बेनकाब करने के लिए, आपके तो वहां गुंडे खड़े होते हैं, अंडों के साथ, डंडों के साथ, हथियारों के साथ खड़े होते हैं। आप छोड़े उनसे। जिस तरह हलीम आदिल शेख ने पूरी एक भी, मेरे भाई मिर्जा साहब ने भी एक बयान दिया है कि रिकॉर्ड सब दिखा नहीं रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं कि पानी वफाक नहीं दे रहे, वफाक नहीं दे। कम से कम अपने रिकॉर्ड तो चेक किया, चेक कर लिया। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात हो रही थी पानी के मुतालिक। आपने कहा कि हलीम आदिल साहब जाते हैं, उनको ये रोक लेते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है, मतलब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं पूछ लेता हूं कि हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं, हलीम आदिल साहब के ही साथ मसला क्यों होता है? देखें, पिछली दफ़ा भी मैंने एक शो में जिक्र किया कि हलीम आदिल शेख का आप नाम लें पीपल्स पार्टी वालों से, उनको पता नहीं क्यों जलस शुरू हो जाती है। उस शख्स से पूरी पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, उनको एफआईआर नहीं कटवाई, उनके ऊपर झूठे केसेस नहीं बनाए, उनके ऊपर क्या बेजारते एक एफआईआर में मैं खुद भी हूँ हलीम आदिल शेख साहब के साथ, कल हमारी कोर्ट में उसमें तारीख भी है। उन्होंने क्या नहीं किया, घोड़की में उनके ऊपर एफआईआर कटाए। क्या अभी हलीम आदिल शेख साहब से क्या मसला है? क्यों? मसला सिर्फ इशू एक है कि हलीम आदिल शेख कहता है कि ये भुट्टो की पार्टी नहीं, ये जरदारी की पार्टी है, ये एक माफिया की पार्टी है। इस टाइम जो सिंध के हुकूमत के अंदर जो पीपल्स पार्टी बैठी है, टोटल माफिया, टोटल करप्ट, टोटल लैबज़दा। कैसे आप माफिया कह सकते हैं? अवाम ने वोट दिया, अवाम के वोट से वो ऐवानों में आए हैं, मतलब खुद से तो वो नहीं है। और फिर अवामी जो रहनुमा होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम कर रहे होते हैं और वो काम भी कर रहे हैं। ठीक है, आप तनकीद करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से वो लबो लहजा ऐसा है? देखें, अपोजिशन लीडर का काम क्या है? इनके जो काम है, जो सही नहीं है, उन्होंने बेनकाब करना। एक बंदा जब आपको आपका आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? वो आईना अगर हम पर्सनल ना हो, घरों पे ना जाए। आज की हमारी हम सियासत जब हम देख रहे हैं, हम घर के अफरादों के नाम भी गिनवा देते हैं, हम उन पे इल्जामात, मतलब वो तो सियासत में नहीं है।
اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ بلاول پہ یا سی ایم پہ تنقید کریں. بالکل حلیم عادل شیخ صاحب نے بالکل ایسے ہی کیا, ذاتیات پہ تنقید نہیں کی. جب آپ ذاتیات پہ جا رہے ہیں, آپ جب حلیم عادل شیخ یا ان کے رشتہ داروں کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں, جو فارم کا ایشو ہوا وہ بھی حلیم عادل شیخ کی کزن کا تھا, رشتہ دار کا تھا, آپ نے وہاں جا کے جو آپ نے توڑا وہ آپ کے ڈی سی آپ کے مختار کارپوریٹر تھے, کلیئر بھی الٹے انہوں نے کر کے دیے تھے نا, تو دوسرے تو نہیں ہوئے. اس طرح آپ ٹپی کو اٹھا لیں, آپ کا عدی تو ماشاءاللہ مشہور ہے پورے سندھ کے اندر. ٹپی کراچی میں جتنے قبضے ہو رہے ہیں, جتنے معاملات ہو رہے ہیں, وہ کس کے سرپرست ہو رہے ہیں. اب جب آپ فیملی تک پہنچیں گے, آپ کی حکومت مراد علی شاہ صاحب کی حکومت جب فیملیوں تک پیروں تک پہنچے گی, مسمار تک پہنچے گی, اس ٹائم ہم بھی چلو ایک چیز ہو بھی گئی. اس کے بعد حلیم عادل شیخ کی وضاحت بیان بھی آ گئی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے, میری لڑائی اگر آپ کی لڑائی مجھ سے تو آپ مجھ سے لڑو, میرے خاندان, میرے رشتہ دار, میرے آبا اکتر نہیں ہو. اس لڑائی میں ہمارا کیا کام تھا؟ ہمارے اوپر ایف آئی آر میرے والد صاحب کو رات کے 2 بجے گھر سے اٹھایا گیا. بہت سارے نام دیے موجود بھی نہیں تھے. ساجد بھائی, اس ایف آئی آر میرا والد صاحب وہاں موجود بھی نہیں تھا. میرے والد صاحب کو ارسٹ کیا گیا رات کے 3 بجے. 2 ڈی ایس پی, 3 ڈی ایس پی, ان کے تو مرید بن کے سندھ حکومت کے گھوم رہے تھے. ہمارے گھروں پہ آئے, ہمارے ورکروں کو گھروں سے اٹھا, ان کو ریڈ کیا, ATC کے کیس لگائی. ان بیچاروں کیا قصور تھا؟ خٹک صاحب کیا وہ 90s کی سیاست دہرائی جا رہی ہے؟ کوئی ہم نے انتقامی سیاست کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ یقین کرتی ہے, نہ ہمارا کبھی ہم نے کیا ہے. میں خود شکار دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں پولیس کے خلاف, پولیس انتظامیہ اگر کسی قبضے کی جگہ خالی کرا رہی ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے, بہت سارے لوگوں کے, یہ تو صرف فارم ہاؤس تھا, بہت ساری جگہوں پہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق گھر توڑے بھی جا رہے ہیں جو نالوں کے اس پر, اور کرنا بھی چاہیے. اگر ایک قبضہ کو ریموو کرنے کے لیے پولیس جاتی ہے, آپ اس کی ویڈیوز دیکھیے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ چلا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی, سانپ بھی تھے, پھر وہاں پہ جیل میں بھی تشدد تھا, پھر اور بہت ساری چیزیں بعد میں جیل کے اندر کے گینگ وار موجود ہے. جیسے حلیم عادل شیخ صاحب کی انٹرویو انہوں نے وہاں دعویٰ بول دیا ان کے اوپر. باقی جہاں تک یہ آتے ہیں حلیم عادل شیخ پہ جو پانی کے مسئلے میں بھگٹی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں. بات یہ کہ پانی کے مسئلے پہ اس کے اوپر کبھی کسی نے نہ پتراؤ کرایا نہ وہ لڑکانا والے شروع آپ دیکھ لیں اپنے. مجھے آپ بات کر رہے تھے, میں نے آپ کو نہیں ٹوکا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ, آپ نے خود بھی یہی جج کیا, میڈیا نے بھی جج کیا کہ آخر حلیم عادل شیخ کے ساتھ ہی کیوں. ایک تو اس کا لب و لہجہ, دوسری چیز ان کا جو ملیر کا ایک الیکشن ہوتا, میں خود وہاں پہ موجود تھا, میرے سامنے حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ آئے, وہاں کارکنوں کے ساتھ آئے, ابتدا بھی انہوں نے کی, فائرنگ بھی انہوں نے کی. ہر جگہ جب وہ پھر یہ اس طریقے سے رویہ رکھتے ہیں, اور پھر یہ جو قبضے والا تھا, ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ میرے پاس شاید ابھی موجود نہ ہو, ورنہ میں بگٹی صاحب کو بھی دکھاتا اور شاید دیکھی بھی ہو, کہ جب یہ اس کو توڑنے کے لیے جا رہے تھے, وہاں سے اس طریقے سے وہ فورس لے کے آ رہے ہیں. ابھی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی, ابھی وہ شاید بہت زیادہ دور ہو, کئی کلومیٹر, وہ تقریباً 50-60 افراد کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, اسلحہ بھی نظر آ رہا ہے, وہ بھی نظر آ رہا ہے, اور بالکل بدماشی والے اسٹائل کے اوپر. تو پھر ظاہر انتظامیہ تو اپنا راستہ دیکھے گی, انتظامیہ کاروائی کرے گی. اچھا, آپ کو نہیں لگتا مطلب لیڈر آف اپوزیشن, اور جہاں آپ پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹیرین کی رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں, جب اگر کوئی آپ کی پارٹی سے کوئی پارلیمنٹیرین اندر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جن کے پروڈکشن آرڈر جلدی نکالا جائے, ان کو لازمی ان کو اجلاس میں اٹینڈنس لگانی ہے, تو اس وقت یہ معاملات اتنے دیکھے نہیں گئے. ہمارے اپوزیشن لیڈر آپ خورشید شاہ صاحب, ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی, آج بھی انتقامی کارروائی ہو رہی ہوئی, 2 مثال کے فرق والا, جیل میں ہے, نہ ضمانت ہوتی ہے نہ دوسری چیز. بہرحال آپ ان کی اپوزیشن بھی دیکھ لیجئے گا, شہباز شریف صاحب کی بھی دیکھ لیجئے گا. حلیم عادل شیخ والا سٹائل اپوزیشن کے کس لیڈر کے اندر ہے؟ مطلب جو تنقید کرے اس کے ساتھ آپ لوگ ایسا کریں. تنقید پہ نہیں, تنقید کرے بالکل طریقے کے ساتھ کرے. خورشید شاہ صاحب بھی کرتے ہیں, کریں گے, مکھن لگا کے تنقید کریں, تنقید کریں گے. دیکھیں جائز چیز پہ تنقید کریں, بدماشی والے لہجے کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ وہ ویڈیو کلپ اٹھا لیجیے کہ جو فارم ہاؤس کے یہ حوالہ دے رہے ہیں, میں نے وہ خود دیکھی ہے, 50-60 افراد پورے وہ تو نظر آ رہے ہیں,
देखिए उसमें मुनीर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि उसका मैं मौजूद था, तीसरा शख्स में तालिम आदिल शेख साहब, जब हम वहाँ पहुंचे अभी आपके पास ऑर्डर क्या है, आप तो डीसी साहब धूम दबा के पता नहीं कहाँ से डीसी मंगाई कहाँ से गई थी, थाना बुल्ला खान के उस तरफ के डीसी फोर्स उधर की मंगाई गई थी, जब यहाँ की फोर्स थी। अब उस टाइम डीएसपी साहब थे, चले उनके उस टाइम मौजूद थे, वो बहस अपनी जगह पे था या नहीं था, आपके पास कानूनी रास्ता था, इसका ये नहीं था कि आप उनके ऊपर अटैक करें इंतजामिया के ऊपर। जब आप अटैक करेंगे तो एफआईआर कटती है तो उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी गुनाहगारों पे कटी होगी, हो सकता है कि एक आध पे ऐसे कटी हो जो बाकी वहां पे मौजूद ना हो, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अक्सरियत बिल्कुल सही एफआईआर कटी थी, वो लोग वो वहां पे मौजूद भी थे और उन्होंने इंतजामिया पे अटैक भी किया। कानूनी रास्ता अपनाते, आपके पास अगर कागजात थे, सब कुछ थे, कोर्टें खुली हुई है, आप लोग कोर्ट जाते, वो रुक जाता मामला वहां पर, लेकिन कोर्ट नहीं गए, वो पूरी तैयारी के साथ हमले के साथ किया और हमला किया भी, तो एफआईआर तो कटेगी। चलें आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से तो आप अलग हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम अकेले ही पीपल्स पार्टी काफी है हुकूमत को या अदम एतमाद लाने के लिए या हुकूमत को घर भेजने के लिए, क्या ये पॉसिबल है? आपके पास मेन पावर है? पीडीएम के ऊपर तो जो आजकल की सूरत हाल है पीडीएम के ऊपर, वो तो मुझे पाकिस्तान की फिल्मों की पुरानी हीरोइनें याद आती है कि शर्माते शर्माते वही काम कर रहे हैं जो हीरो चाहता है, तो वही कुछ कर रहे हैं। हमने क्या कहा था पीडीएम को कि लॉन्ग मार्च करते हैं। ये दो तरह का रवैया नहीं है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही लीड करते हैं, फाउंडर भी आप, लेकर भी ये कारवां आप चले थे, सबसे पहले चेमा गोइयां थी, हम अपने प्रोग्राम में बता चुके थे कि आपके बैकडोर रवाबित मुमकिन है और जराए हमारे बता रहे थे कि आप पहले हट जाएंगे और हट गए। नहीं, हम नहीं हटे हैं, हम आखिरी वक्त तक नहीं हटे थे। बात आया था इस्तीफों के ऊपर, इस्तीफे बिल्कुल आखिरी ऑप्शन था। आज भी पीडीएम उसी पे अमल कर रही है। अभी भी जो इन्होंने फैसला किया, लॉन्ग मार्च का फैसला किया, जो हमने कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि लॉन्ग मार्च करते हैं, जमहूरी रास्ता अपनाते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन था, इस रिजाइनों से मना नहीं किया गया था। हमारे चेयरमैन साहब ने रिजाइनें तलब की थी, उनके पास मौजूद भी थी, लेकिन पहला स्टेप नहीं था। सरबराह पीडीएम ने आपको कहा था कि आप सिंध में भले ना दे, आप वफाक में तो दे दें, लेकिन आपने कहा हम वहां भी नहीं देंगे। अभी क्यों नहीं दे रहे? अभी दे देना कि भाई ठीक है, हमने पीपल्स पार्टी ने चलो जो भी किया, अब वो पीडीएम रिजाइन दे दे। पीडीएम रिजाइन पे नहीं जाए, मुमकिन है दे दे, वो आपसे तो नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं देगी। अच्छा। पीडीएम उसी सेटअप पे चल रही है जो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था, आज उसी की तरफ रवा दवा है। और पीडीएम का हकीकतन हमारे क़यादत के फैसले थे, पीडीएम के साथ रहे हम, पीडीएम ने हमने वो किया, लेकिन पीडीएम से पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं था, पीपल्स पार्टी से पीडीएम को फायदा था हमारी तरफ से। आज ये अभी जलसा देख लीजिएगा और कुछ नहीं। अगर आप पीडीएम से हटे तो आपको एक फायदा आजाद कश्मीर इलेक्शन में तो हुआ, 11 निश्चित मिली आपको। पीडीएम से हटने तो पीडीएम से तो हमें नुकसान था, आपको बेनिफिट हुआ, आप पीडीएम से हट गए, आपको वहां से निश्चित मिल गई। अवामी तौर पर मुस्लिम लीग नून तकसीम दर तकसीम हो रही है बीच में। हमारे को उससे भी वो होता है, NA 249 के जो इलेक्शन है, इसके ऊपर ये हमारे शहबाज शरीफ साहब खुद लड़े थे, इनके वो लड़े थे। सूरत-ए-हाल देख लेना, मैं खुद उसका इलेक्शन सेल का इंचार्ज रहा था 249 का, तो वहां पे सूरत-ए-हाल ये थी कि पब्लिक खुद बखुद जो है पीपल्स पार्टी से रुजू कर रही है, और वो लोग कर रहे हैं जो नून लीग की है। दर नून लीग की शमूलियत हो रही है और इनके रवैये से हो रही है, क्योंकि इनमें सख्त तरीन इख्तिलाफ है। आज भी सिंध में इनके इख्तिलाफ चल रहा है, आपके मीडिया को भी इल्म है, सबको इल्म है। तो पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट पे थी, सेकंड पे आप नून लीग को कह सकते थे कि जिसका अवामी। चलो मैं पूछ लेता हूँ, मैं पीटीआई से पूछ लेता हूँ। सर, अब मौलाना साहब का कहना है अब सड़कों पर भी अब आएंगे और ये कारवां इस्लामाबाद भी जाएगा, लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं है। आपको कितना मतलब खतरा है कि अभी आके अगर इस्लामाबाद मफलूज करते हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखें साजिद भाई, सबसे पहली बात तो ये, हमें पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। जिस तरह इन्होंने पप्पा डैडी बचाओ मूवमेंट, जो इसका जो असल जो चेहरा है पीडीएम का, वो ये था। देखें भुट्टो साहब की शहीद होने के बाद जिस तरह जरदारी ने पीपल्स पार्टी को कब्जा किया, उनकी शुरू से एक रवायत हुई है कि पीठ में छोबरा भोंकने की, क्या कहते हैं वो, मारने की, हाँ, वो आदत रही है। उस तरह पीडीएम के साथ भी इन्होंने वही किया। मौलाना साहब को और नून लीग को इन्होंने राय रास्ता समंदर के मतलब बीच में लेके गरम लेके उन्होंने छोड़ दिया।
उन्होंने किनारा कशी किया, अब वो अपनी भाषाइयात सिंध के अंदर कैसे खत्म करते, इतनी सीटें कैसे इस्तीफा देते, और जाहिर सी बात है नामुमकिन सी बात है, यहाँ तो इनकी भाषाइयत है, जरदारी साहब का राज चलता है, सीएम साहब का राज चलता है, बिलावल साहब का किसी की भी हेलीकॉप्टर लेके उड़ सकते हैं, यहाँ तो उनकी भाषाइयत है, अपनी भाषाइयत वो खत्म कैसे करते हैं। और दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी ने ही पीडीएम का जनाजा निकाला, अब उसमें एक खामखा मौलाना साहब और नून लीग फूक भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी काम की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हुकूमत, सियासत में तो सब कुछ होता है, बिल्कुल आज नाराज है, कल फिर अगर ये आते हैं डी चौक की तरफ भी वेलकम है, इनको कोई एतराज नहीं है, अपने पुरअमन तरीके से आके एहतजाज जो होती है इनकी रिकॉर्ड करा के चला जाए, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत इंशाल्लाह अपने 5 साल से रहे, जैसे आप लोगों ने 120-124 5 साल हमेशा पूरी करेगी। अगर वो इस तरह पुरअमन करे तो किस तरह 126 दिन जो धरना था वो भी पुरअमन था ना, लोगों ने देखा होगा, मीडिया पे रिकॉर्ड मौजूद है। क्या आप उस तरीके से पुरअमन चाह रहे हैं? एहतजाज करना तो सबका हक है। वो क्या, मेरा सवाल सिर्फ भुट्टी साहब से ये उस तरीके से पुरअमन हो चाहिए कि एसएसपी को मारा जाए डंडों से, या पीटीवी पे कब्जा किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट पे सलवारें कपड़े टांगे जाए, पुरअमन से मुराद ये। खटक साहब यहाँ तो पीडीएम की हिमायत कर रहे हैं, यहाँ तो पीडीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीडीएम की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने तो बीच समुद्र लॉन्ग मार्च हमारे बीच समुद्र लाके छोड़ दिया, अपने बेचारे आगे पीछे कह रहे हैं। लॉन्ग मार्च हमारा है, एसीयू में बैठ के तमाशे देखे कि पीडीएम क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, होना तो कुछ है नहीं। जिस तरह आप भी इनके साथ लॉन्ग मार्च जलील हुए, रुस्वा हुए, घर बैठ गए, अभी भी मौलाना साहब भी ऐसे होंगे। नहीं लेकिन इस पे सवाल ये है कि मैंने सिर्फ पुरअमन का पूछा है, अभी बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं पीडीएम को कहता हूं कि अदम एतमाद पहले पंजाब में लाया जाए, ऐसा ही है। अच्छा ऐसा ही क्यों कि आपकी ही क्यों सुनी जाए? ये तो 11 जमातें हैं, आप उन पे क्यों डोमिनेंसी दिखा रहे हैं कि हमारी बात सुने? 11 जमातें बेशक है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इनके पास अगर अवामी लिहाज से देखा जाए, या उनके पास क्या कहते हैं असम्बलीज में देखा जाए तो 3 ही जमातें रही हैं, बाकी तो जैसे है आपको भी इल्म है, सबको इल्म है। बात यह है कि पंजाब में हमारी बात मानी ना जाए, ये सामने की बात है, एक जायज को जायज बोला जाए। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर पीडीएफ संजीदा हो आज, अगर वो इनका मुकमका पीटीआई वालों से ना हो, लेकिन हमारे जरा का कहना है कि आपकी भी काफिली के रहनुमाओं के साथ साथ बैकडोर रवाबित थे जिस पर नून लीग को एतराज हुआ। नहीं, नून लीग को एतराज हो, वो हो सकता है हमारे को अदम एतमाद में अगर बैकग्राउंड में साथ दे देते हैं तो उड़ना ही उड़ना था उनको, वो साथ की बात में नहीं कर रहा हूं, हमारे कोई ऐसे रवाबित उनके साथ नहीं रहे हैं काफिली के साथ। बात यह है कि अगर हमारे पास अभी भी हम ये समझते हैं कि अगर पीडीएम संजीदा होती है, बिलखुसूस नून लीग अगर वो संजीदा होती है तो पंजाब गवर्नमेंट कल खत्म हो सकती है। उसमें हो सकता है काफ लीग के भी लोग मिल जाए, हो सकता है हमारे पास आजाद भी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि तंग बारल उनसे है पीटीआई से जिस तरीके से। मैं पूछ लेता हूँ बुट्टी साहब, अदम एतमाद पंजाब में लाने की अभी भी बात की जा रही है, कल के बिछड़े हुए आज फिर मिल सकते हैं, कितने आपको खतरात लाहक हैं? पंजाब हुकूमत आपकी गिर भी सकती है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर से पीडीएम एक हो जाए, आप कितने पुरुमीद हैं? और एक पाकिस्तान का एक माजी भी रहा है, अगर सीएम को हट के जब हम वजीर आजम पर हम आते हैं तो बहुत सारे वजीर आजमों को आईनी मुद्दा पूरा नहीं करने दिया गया। देखें साजिद भाई, सबसे पहली बात है ये तो एक हो ही नहीं सकते किसी भी सूरत, क्योंकि पीपल्स पार्टी कुएं में धक्का देके कहती है ये तो बड़ा कुआं है, हम तो पीछे हट रहे हैं। मौलाना साहब और नून लीग समझ गए, वो तो कह रहे हैं पहले आप छलांग लगाएं फिर हम तैयार हैं, पहले ये एक हो, ये बात की कहानी है देखी जाएगी, और हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कभी बनी नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह पीडीएम अभी जो बनी हुई पार्ट 2 जो बनी है वो तो सबसे पहले उनकी बात ही है कि आप इस्तीफे दो, आप मामलात करो, फिर हम आपके साथ हैं, इनकी कंप्रोमाइज किसी सूरत बन नहीं सकती है। लास्ट में आपके वज़रा को इल्हाम हो जाता है कि अब बहुत जल्द गिरफ्तारियां फिर से होनी है, शहबाज साहब जल्द से कम करें, बहुत जल्दी अंदर होने वाले हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है? नहीं, देखें इन्फॉर्मेशन तो पहले नहीं आ जाती है, जाहिर सी बात है जिस तरह कोर्ट के अंदर इनके मामलात और इश्यूज चल रहे हैं तो उनसे तो जाहिर एक चीज नजर भी आ रही है, वाजे भी हो रही है कि जिस तरह अभी डेट पे डेट दिए जा रहे थे, कोर्ट को भी
कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए बीमारी का बहाना करके वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी जो छोटी जमानती हैं उनको भी कोर्ट की तरफ से नोटिस आ सकता है, दूसरे मामले बन सकते हैं, उसमें बेटर कोर्ट समझ सकती है। और जाहिर सी बात है वकला हुकूमती भी उसमें मदद कर रहे हैं अपने। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।